Good morning, students. Myself, Kamlesh Binarwani, once again represent you our social study book, Lesson 9, Fundamental Right, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy of the Civics sections. In previous chapter of Civics section, the framing of Constitution and its features, Lesson 8, we discussed about the Constitution, its meaning, importance, and the process of framing the Constitution's preamble, importance and main pillars of preamble, and main basic features of the Constitutions. Now, in this section, we will discuss and or we will talk about the fundamental right, fundamental duties and directive principles of our state policy. So first of all, we discussed introductions, what is human right and fundamental right, difference between both them, and all the fundamental rights which we gain by our constitutions. So now let's start, but before start our lesson, I will suggest you that keep a notebook also with you, so you can feel easy to write anything in your notebook. Okay, now let's start. So students, our lesson 9, fundamental right, fundamental duties and directive principle of state policy. First of all, we talk about introductions. In the previous chapter we had studied Indian constitutions. पिछले चैप्टर में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, preamble and importance pillar as well as the specific characteristics. In this chapter we will study about other important characteristics of constitutions, that is fundamental right, fundamental duties and directive principle of state policy. So first of all we will understand that what is human right or fundamental right. Human right are those rights which not only gives a person his her basic existence but also overall development, in which society helps to construct an environment which enable him her to grow. So ह्यूमन राइट वो राइट्स हैं जो कि ना सिर्फ एक ह्यूमन के या एक पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बल्कि उसकी सोसाइटी के हेल्प के लिए भी और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसके डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक होते हैं. इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन्स आर कन्फर्ड विद बेसिक राइट्स. कन्फर्ड का मीन्स टू गिवन, कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो एक सिटीजन्स को जन्म से ही कुछ बेसिक राइट्स मिलते हैं. ए पर्सन इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटेड. डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब भेदभाव करना. सो ए पर्सन is not discriminated on the basis of caste can experience the basic right. The protection of these rights are assured by society and nation as well. एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी भी पर्सन के साथ में उसकी जाति के साथ में या उसकी जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है. जाति, धर्म, लिंग, हम ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. और यही बेसिक राइट्स हैं कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें अगर एक छोटे से छोटा गरीब व्यक्ति है या कोई बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति, चाहे कोई किसी लो सोसाइटी से बिलोंग करता है या हाई प्रोफाइल सोसाइटी से, ये सारे इक्वल हैं कानून की नज़र में या उस कंट्री के अंदर इक्वल सिटीजन के रूप में माने जाते हैं. और इन्हीं राइट्स का प्रोटेक्शन करना हमारी सोसाइटी का और नेशन का दोनों का ही कर्तव्य है.
और ये दोनों ही हमें एश्योर करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कि आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं वह एश्योर्ड रहेंगे। द पर्सन बाय हिज बर्थ ओवन राइट विच आर हिज है बेसिक राइट्स विच आर नोन एज ह्यूमन राइट्स है। सो एक पर्सन जो अपने जन्म से ही इन सारे अधिकारों को लेकर के आता है और यह उसके खुद के अधिकार कहलाते हैं, ये उसके ह्यूमन राइट या बेसिक राइट्स कहलाते हैं। यूनाइटेड नेशन असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड ह्यूमन राइट ऑन 10th December 1948 and 10th December is celebrated as Human Rights Day. Please underline these lines. ये दोनों ही सेंटेंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि पहली बात, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ह्यूमन राइट्स डे कब डिक्लेयर किए? 10th December 1948 को। इसी कारण से हर साल 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। फ्रॉम द ग्लोबल अनाउंसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, certain basic and important human rights are added in the Constitution of India and thereby these rights are protected in a dignified way. We know that our country is independent in 15 August 1947 and our Constitution framing work is in process in that time, and our Constitution had completed 26 November 1949. So between this period, United Nations General Assembly has declared these human rights. So when our constitution framing work is in process, then our leaders thought that we include these rights in our constitution. हमारा भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ और हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर के कंप्लीट हुआ। इस समय हमारा संविधान बनने की प्रोसेस में था, तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सारे अधिकारों को जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किए हैं हमारे संविधान के अंदर डाल दिया जाए, ताकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बन जाएंगे। So, thus those human rights which are included by Constitution of India are known as fundamental right. क्योंकि ये राइट्स, ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड किए गए हैं, इसलिए हम इन्हें फंडामेंटल राइट के नाम से भी जानते हैं। These human rights proclaim the human being to live in a dignified way. डिग्निफाइड का मतलब सम्मानजनक रूप से। ये जो ह्यूमन राइट्स हैं एक मनुष्य को सम्मानजनक जीवन जीना सिखाते हैं। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग द बेसिक नीड्स फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। आप जानते हैं ये सारी ही चीज़ें एक ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक हैं। सो शुड बी रिसीव्ड इन ए डिग्निफाइड एंड रेस्पेक्टेबल वे। एक बेगर भी फूड प्राप्त करता है, और अगर एक मज़दूर है वो भी फूड प्राप्त करता है, और अगर एक कॉमन पर्सन है वो भी फूड प्राप्त करता है। लेकिन इन तीनों के फूड को रिसीव करने का तरीका अलग अलग होता है। हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि इन ह्यूमन राइट्स के द्वारा कोई भी व्यक्ति रेस्पेक्टेबल वे से अपना सम्मानजनक जीवन जी सके। So should be received in a dignified and respectable way. So democratic country allow its citizen to enjoy equal rights for multifaceted development. इसलिए वह अपना मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट यानी कि हर तरह से एक सिटीजन अपना डेवलपमेंट कर सके एजुकेशन के द्वारा, या उससे कानून की जानकारी नहीं है तो कानून के द्वारा अपने सोसाइटी को ऊपर उठा सकें। सो द स्टेट guarantees such a conducive environment wherein one has protection of fundamental right and true identity of democratic systems. इसीलिए हमारे स्टेट ने गारंटी दी है कि हमारे यहाँ पे इस तरह का कंडक्टिव इन्वायरमेंट बनाया जाएगा जिसके के द्वारा हर एक पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें, जिसके के द्वारा हमारी जो कंट्री है वह एक राइट अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी के रूप में
प्रूफ हो सकें कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड द फंडामेंटल राइट। सो द नेशंस स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर प्रोटेक्टेड थ्रू फंडामेंटल राइट्स। हमारे नेशन की जो स्टेबिलिटी है और हमारे कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनकी फ्रीडम और डेमोक्रेसी, इन सभी को फंडामेंटल राइट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। ये फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड सिक्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पहले हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब समानता का अधिकार, सेकंड राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म का अधिकार, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वन बाय वन हम इनको डिस्क्राइबली पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम ले रहे हैं राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर इंक्लूड इन राइट टू इक्वलिटी। यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून के समक्ष समानता एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कानून का इक्वली प्रोटेक्शन करना, ये इस राइट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। दिस फंडामेंटल राइट इज़ द मेजर फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर राइट्स एंड प्रिविलेज गारंटेड टू इंडियन सिटीजन्स। इस अधिकार के तहत हम सभी नागरिकों को उनके अधिकार दे सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में भौगोलिक तौर पे एवं सांस्कृतिक तौर पे अनेक तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद अगर हम कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान कर देते हैं या समान दर्जा देते हैं, तो हर एक व्यक्ति जो कि देश के किसी भी कोने में रहता है वह इस देश का इक्वली नागरिक होगा। सो इट इज़ वन ऑफ द चीफ गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह सबसे प्राइमरी तौर पे गारंटी दी जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया के द्वारा। Thus, it is imperative that every citizen of India has easy access to the court to exercise his right to equality. अगर किसी व्यक्ति के साथ में असमानता का व्यवहार किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो आप इजी वे में कोर्ट में जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, नो पर्सन शेल बी शोन फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रीड, लैंग्वेज एक्सेट्रा। एवं इस अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ में फेवरेटिज्म यानी पक्षपात नहीं किया जाएगा। किस आधार पे? उसके कलर के आधार पे कि ये गोरा है ये काला है, उसकी कास्ट के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे, उसकी भाषा के आधार पे। लॉ इज इक्वल टू ऑल, और कानून सभी के लिए समान होगा। फ्रॉम द peon of the prime minister, if they act against law, they are treated equally and are bound to the general court of law. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर एक कॉमन व्यक्ति और हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर दोनों ही इस अधिकार के तहत दोनों ही इक्वल आ जाते हैं, अगर दोनों ही अगर किसी भी रूल को अगर फॉलो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी जो कोरोना काल के अंदर जो ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो रूल्स बनाए गए थे वो सभी को फॉलो करने हैं। एक आम आदमी भी मास्क पहनेगा तो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे देश का, उसे भी मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर वह सड़क पे बिना मास्क के दिखाई देते हैं तो यह अगेंस्ट ऑफ लॉ होगा और दोनों के ऊपर इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, इक्वल उनको पनिशमेंट दी जाएगी। सो हाउएवर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है सर्टेन प्रिविलेज। हमारे देश के अंदर ओनली फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को ही कुछ छूट दी जाती है इन कानूनों के तहत, जो कि एक विशेष कानून आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंस द लॉ शुड प्रिवेल इक्वली। हर एक कंडीशंस में देश के हर एक नागरिक के लिए कानून इक्वल बनाए जाएंगे। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशंस और स्पेसिफिक फेवरेटिज्म शोन ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन और क्लास है। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या क्लास के लिए किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरी लॉ शुड बी इक्वली यानी कि डिसमिनेटेड का मतलब इम्प्लीमेंटेड। हर एक लॉ इक्वली इम्प्लीमेंटेड होगा हर एक सिटीजन के ऊपर। एवरी पर्सन shall have equal admittance to public place like shop, restaurant, hotels, public entertainment places, have equal access to road and lakes and use of public well and bathing ghats। पहले के समय में जब गाँव के अंदर छुआछूत पाई जाती थी उस समय सभी के घाट या सभी के पीने के पानी के कुएं भी अलग अलग बने हुए होते थे और उस समय छुआछूत की जाती थी कि नहीं ये इस जाति का घाट है या इस जाति का घाट है। लेकिन आज के समय में आप देखते हैं कि आप सारे जने इक्वली बैठ सकते हैं किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे हॉस्पिटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, किसी भी शॉप हैं, होटल हैं, आप सिनेमा में जाते हैं वहाँ पे आपसे आपकी कास्ट नहीं पूछी जाती है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप होटल में जाते हैं, आपसे आपकी कास्ट नहीं पूछी जाती है। जितने भी रोडेज हैं, चाहे हमारे हाईवे या फिर जो नेशनल वेज, इनमें आपसे कास्ट पूछ करके आपको परमिशन नहीं दी जाती है। सो ये सारी चीज़ें इक्वली सारी पब्लिक के लिए यूजेबल होगी। हाउ एवर द स्टेट हैज़ द राइट टू मेक एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हाँ, हमारे देश के अंदर इस तरह का प्राविधान है कि जो वुमेंस या चिल्ड्रंस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाए। या जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ऐसी कई सारी जनजातियाँ थी जो कि पिछड़ी हुई थी। उन्हें इस मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे, उनका वह लाभ उठा सकते हैं, बट भेदभाव के द्वारा नहीं। जो नियम या कानून हमारे संविधान में बनाए गए हैं उनको फॉलो करना ही होगा। नो सिटीजन शेड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्विस एंड हायर एजुकेशन अंडर द स्टेट्स। एक सिविल गवर्नमेंट, अगर सिविल सर्विसेज में या अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जा रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसमें किसी भी पर्सन के साथ में या सिटीजन के साथ में उसकी जाति, धर्म या उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, उसके कलर के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन मैटर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैव टू बी ऑफर्ड टू ऑल द सिटीजन्स। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें किसी भी पर्सन के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। सो however the state is given permission to make decision regarding qualifications for said services। हाँ, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से क्वालिफ़िकेशन फिक्स करता है, अगर वह क्वालिफ़िकेशन अगर एक गरीब आदमी ने भी अगर फॉलो करके रखी हैं, अगर उसने गेन करके रखी हैं, तो उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर वह मेरिट में आता है तो जिस भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाती हैं कि मेरिट बेस पे हो या क्वालिफ़िकेशन बेस पे हो, डिग्री बेस पे हो, वो सारी डिग्रीज या क्वालिफ़िकेशन अगर एक गरीब व्यक्ति ने भी अगर फॉलो करके रखी है और गेन करके रखी हैं तो उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सेकंड, एज ए गारंटी to social justice and personal dignity, untouchability is abolished and it's practiced in any form is prohibited and punishment offense। गारंटी के तौर पे, सामाजिक न्याय की गारंटी के तौर पे और पर्सनल डिग्निटी यानी कि व्यक्तिगत गरिमा के तौर पे अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत की भावना पालता है अपने मन में या छुआछूत का व्यवहार करता है तो यह कानूनी रूप से एक दंडनीय अपराध है। पनिशेबल ऑफेंस यानी अपराध और पनिशेबल यानी दंडनीय, जिसके लिए दंड दिया जा सके, पनिशमेंट दिया जा सके।
titles and epithets which create artificial discriminations in those society have been removed. पहले स्वतंत्रता के पहले हमारे देश के अंदर कई सारे जनों को महाराणा या महाराजा की उपाधि दी जाती थी, किसी को दीवान की उपाधि दी जाती थी। ये सारी उपाधियां अब हटा दी गई हैं। द एडजेक्टिव्स यूज्ड बिफोर नेम्स लाइक सर, दीवान जी, राय बहादुर, ये सारे हटा दिए गए हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फेलिसिएट स्पेशल कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल इन वेरियस फील्ड गिव्स स्पेशल अवार्ड लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र इज अवार्डेड इन मिलिट्री सर्विसेज। अभी वर्तमान समय में जो हमारी गवर्नमेंट है वह अनेक फील्डों के अंदर जो पद्म विभूषण का, भारत रत्न का जो अवार्ड देते हैं वो उनके स्पेसिफियल वर्क के आधार पे दिया जाता है। और इसी तरह से मिलिट्री सर्विसेज के अंदर जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, ये उनकी क्वालिटी के आधार पर उनकी जो उनमें क्वालिफ़िकेशंस होती हैं उनके आधार पर दिया जाता है। सो विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी। ये वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी को वायलेट नहीं करता है। द एम ऑफ दिस राइट इज़ टू फॉर्म एन इक्विटेबल सोसाइटी एंड देयरबाय एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। इस कानून को बनाने का मकसद हमारे देश के अंदर इक्विटेबल सोसाइटी की स्थापना करना है और सभी को रूल ऑफ लॉ इन इंडिया के अंतर्गत सभी को समान रूप से लेकर के आना है। टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और क्लास, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविजन अंडर लॉ ऑफ, फॉर एग्जाम्पल्स देयर आर डिफरेंट लॉज फॉर एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंश्योरेंस एजेंसीज, वुमेन या फिर जुवेनियल्स। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल्स। हमारे देश में जितने भी अलग अलग फील्ड हैं, जैसे कि एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इनके लिए अलग अलग रूल बनाए गए हैं। अलग अलग स्टेट्स अलग अलग रूल बना सकते हैं कि जैसे अगर सारे टीचर्स अगर एक हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर उनके लिए रूल्स भी एक ही जैसे होंगे। डॉक्टर्स के लिए अगर किसी स्टेट ने अगर 65 ईयर्स का अगर रिटायरमेंट एज डिक्लेयर करके रखा है, किसी स्टेट ने 60 ईयर का डिक्लेयर करके रखा है, तो उसी एज के अकॉर्डिंग उनको रिटायरमेंट दिया जाएगा। एक पर्टिकुलर स्टेट में उनको फैसिलिटी दी जाएगी। यह स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। आज पहले के समय में वुमेंस के साथ में और मेंस के साथ में वर्क की पेमेंट के लिए भी भेदभाव किया जाता था कि अगर एक महिला है तो वह कम पेमेंट पर वर्क कर लेगी। लेकिन जब से यह समान वर्क और समान आमदनी का या समान जो पे का कानून लागू हुआ है, उसके बाद से ही हमारे देश के अंदर अगर कोई महिला काम कर रही है या पुरुष काम कर रहा है, अगर वह इक्वल वर्क कर रहे हैं, दोनों ही पोस्ट पे हैं, अगर एक ही पोस्ट पे हैं और अगर वह एक जैसा वर्क कर रहे हैं तो उन्हें एक समान पेमेंट दी जाएगी। सेकंड है राइट टू फ्रीडम। सो इन दिस राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम विच आर एज अंडर्स। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, जो हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, यानी बोलने की और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार के सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, अपनी एसोसिएशन या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी टू इंडिया, इस पूरे इंडिया देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी टू इंडिया, आप इंडिया से अमेरिका जा सकते हैं इजीली, उसके लिए आपको पासपोर्ट या वीज़ा बनवाना होता है। आप जापान जाएंगे, चाइना जाएंगे, अदर किसी भी कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे आपको वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस अधिकार के तहत हम इंडिया के किसी भी स्टेट में घूमने के लिए जाएं तो उसके लिए हमारे को स्पेशल परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है।
एंड टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, गुजरात में सेटल होना चाहता है तो वह अपनी इच्छा से सेटल हो सकता है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशंस, ट्रेड और बिजनेस। पहले हमारे यहाँ पे जातिगत तौर पे व्यवसाय चलते थे कि अगर एक बार्बर का बेटा बार्बर बनेगा, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, कोई टीचर का बेटा टीचर बनेगा। ये सारे हमारे यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी उसके आधार पे इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में इन सभी नियमों को हटा करके अगर कोई एक बार्बर का बेटा है, सपोज़ कीजिए, मैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आप में से अगर कोई है तो आप उसको माइंड मत करना। अगर कोई एक बार्बर है, अगर कोई कारपेंटर है, उसके बेटे ने अगर एक अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कर ली तो वह आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है। These rights are of utmost importance for the overall development of personality and expressions of Indian citizens, for harmonious working of democracy and a healthy lifestyle। ये हमारी डेमोक्रेसी को एक हेल्दी बनाने के लिए किया जाता है। एन इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सरसाइज दिस फ्रीडम ऑटोनोमियसली और इरेस्पॉन्सिबली। कोई भी व्यक्ति इनका स्वतंत्रतापूर्वक अपने तौर पे अधिकार नहीं उपयोग नहीं कर सकता है। कि ऐसा नहीं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता दे दी, आप पीसफुली असेंबल होने की स्वतंत्रता दे दी तो आप अपने एक्सप्रेशन में कुछ भी बोलें। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जो बोल रहे हैं, आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी दी है कि आप किसी भी धर्म के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सामने आप जिसके लिए बोल रहे हैं उसको हर्ट नहीं होना चाहिए। सो द स्टेट कैन कंट्रोल एंड लिमिट्स दिस राइट टू फ्रीडम इफ़ दे गो अगेंस्ट द वेलफेयर, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी। अगर स्टेट इन फ्रीडम पे कंट्रोल कर सकता है या लिमिट कर सकता है, कब? अगर आप किसी के वेलफेयर के अगेंस्ट या शांति के विरुद्ध अगर कोई काम कर रहे हैं या सोसाइटी की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो स्टेट्स आपकी इन फ्रीडम्स पे लिमिट कर सकता है। सो दिस हैज़ बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ बीन स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ द राइट्स आर एक्सरसाइज्ड। हमारे को संविधान में यह भी बताया गया है कि हम इन अधिकारों का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। Indian citizens have been given the freedom of speech and expressions. This can be expressed either orally, verbally or through gestures. हमारे इंडियन सिटीजन्स को इन सारे अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है और हम इससे बोल करके, वर्बली या फिर थ्रोली गेस्चर्स, इशारों से भी हम इन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। बट दैट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एक्सरसाइजिंग दिस राइट्स इन अनलिमिटेड एंड अनरेस्ट्रेंड मैनर्स। इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि हम इन स्वतंत्रताओं का उपयोग किस आधार पर कर सकते हैं। सर्टेन नेसेसरी कंट्रोल एंड लिमिटेशंस हैव बीन स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके लिए जो लिमिटेशंस या कंट्रोल जो किए गए हैं वह भी हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। द स्टेट कैन पुट रिक्वायर्ड कंट्रोल थ्रू लॉ एंड ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे देश का मेन पर्पस क्या है कि हमारे जो देश की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। हमने प्रीएम्बल के अंदर भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था। तो हमारे संविधान का मेन उद्देश्य है कि हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए अगर कोई पर्सन्स है इसके अगेंस्ट में अगर कोई स्पीच देता है तो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा इसे मेंटेन भी कर सकता है। सेफ्टी ऑफ द स्टेट्स फॉर एमिकेबल रिलेशन विथ फॉरेन नेशंस, पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक पीस, compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, defamations and provoking violence for crimes। इसके लिए स्टेट ही तय करता है कि हमारे फॉरेन रिलेशन, आप इंडिया में हैं, इंडिया के बारे में अच्छा बोल रहे हैं लेकिन फॉरेन कंट्री के बारे में आप कुछ भी बोल रहे हैं। आज के समय में आपको ध्यान होना चाहिए कि फॉरेन कंट्रीज़ के जो राजदूत वगैरह जो कि एज ए वैसे हमारी कंट्री के अंदर रहते हैं, हर एक चीज़ का आप
के वैसे मीडिया के तौर पे एक एक चीज़ का नॉलेज लिया जाता है। सो पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक पीस, पब्लिक के अंदर पीस की भावना, शांति की स्थापना हो, कंप्रोमाइज़ एंड सेफ्टी, मॉरलिटी नैतिकता, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, ये सारी चीज़ें हमारे को अगर हम इन सभी का उल्लंघन करते हैं तो यह कानून का उल्लंघन के समान होता है। सो इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी वेदर दीज मैनी लिमिटेशंस आर अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट है। इनमें कौन सी लिमिटेशंस अप्रोप्रिएट है, उचित हैं, और कौन सी नहीं हैं, इसका डिसीजन लेने का अधिकार जुडिशरी को है। द पर्पज बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस थ्रू विच आइडियाज एंड ओपिनियंस पुट फोर्थ फॉर पब्लिक वेलफेयर हैज़ नॉट बीन सेपरेटली मैंशनड। इसमें आपको जो मीडिया के द्वारा या फ्रीडम ऑफ प्रेस के द्वारा जो अपने आइडियाज या ओपिनियंस को आप पब्लिक के सामने रखने का अधिकार मिला हुआ है, इसका मेन पर्पज़ ये है कि पब्लिक का वेलफेयर बना रहे। इट कैन बी इंक्लूडेड इन द राइट टू एक्सप्रेशन, यह भी हमारे राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आता है। द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2009 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया confers free and compulsory primary education for the children between 6 to 14 years। अभी 2009 के अंदर ही लेटेस्ट में एक अधिकार दिया गया था जिसके के तहत फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का कानून बनाया गया है। इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट कन्विक्टेड फॉर ए क्राइम देन ही कैन नॉट बी सेंटेंस्ड to punishment or more punishment than the one prescribed by the laws। अगर किसी व्यक्ति को एक बार किसी जुर्म के लिए सज़ा हो चुकी है तो उसे दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर उसने कोई गलत काम किया है उसे कोर्ट के द्वारा सज़ा दी जाती है। सपोज़ कीजिए कि अगर किसी पर्सन्स को किसी अपराध के लिए 2 साल की जेल हुई, उसको 6 महीने की जेल हो चुकी है और वह अपना केस हाई कोर्ट में लेकर के जाता है। हाई कोर्ट के अंदर भी वह सज़ा इतनी ही रहती है, 2 साल की ही सज़ा रहती है, उसकी सज़ा कम नहीं की जाती है। तो जो पहले 6 महीने की सज़ा वह भुगत चुका है, वह 6 महीने की सज़ा तो उसकी काउंट होगी ही, उसके बाद में जो रिमेनिंग पीरियड्स हैं वही काउंट होगा। कैन नॉट बी गिवन द पनिशमेंट मोर देन वंस, कैन नॉट बी गिवन टू द सेम कन्विक्टेड पर्सनस, और एक ही पर्सन को अगर एक बार सज़ा मिल गई है तो दूसरी बार सज़ा नहीं दी जाएगी। नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ लॉ। कानून के तहत कि कानून कभी भी किसी को डिप्राइव्ड नहीं करेगा उसकी लाइफ एंड लिबर्टी के लिए। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट, किसी भी व्यक्ति को बिना उसका जुर्म बताए अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इफ़ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ हरसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज हर चॉइस, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो वह अपने चॉइस के लॉयर को चूज करने का अधिकार रखता है। An arrested person has to be brought before the nearest magistrate within 24 hours। अगर किसी थाने के द्वारा किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे विदिन 24 आवर्स में उसके नियरेस्ट कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो यह पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। विदाउट द परमिशन ऑफ नो इंडिविजुअल कैन बी केप्ट इन कस्टडी, बिना परमिशन के किसी भी, अगर हायर परमिशन के या हायर अथॉरिटीज़ की परमिशन के किसी भी पर्सन को कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। एज पर द प्रोविशन एक्ट द पर्सन अंडर अरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द अफोर्ड मैटर्स। प्रिवेंटेशन यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशंस। अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशंस के बारे में जान लेते हैं एक बार कि इफ़ द स्टेट एंटीसिपेट्स एनी क्रिमिनल डीड्स और एक्टिविटी फ्रॉम एनी पर्सन देन एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट पर्सन कैन बी डिटेन्ड बाय द स्टेट अंडर एज प्रिवेंटिव डिटेंशंस एक्ट। किसी भी व्यक्ति को अगर सपोज कीजिए आज के 2 साल पहले कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या अगर किसी भी तरह का अगर सामाजिक तौर पे मारपीट हुई है, उनका इन्वॉल्वमेंट रहा था उस लड़ाई झगड़े के अंदर, तो आगे आने वाली जो भी अगर सामाजिक कार्यक्रम हैं उनमें एक सामाजिक जुलूस निकल रहा है, उसमें अगर किसी भी तरह का अगर लड़ाई झगड़ा होता है और अगर कोई भी पर्सन से इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो आगे आने वाले जुलूस के अंदर, सपोज कीजिए होली का जुलूस है या कोई सभी जुलूस हैं,
उसमें किसी भी कम्युनिटी के पर्सन्स के द्वारा झगड़ा किया जाता है तो उन्हें पहले से ही अलग कर दिया जाता है अगली बार जुलूस में जाने से, ताकि इसका पर्पज़ यह नहीं है कि उससे पनिशमेंट दी जा रही है, उससे पनिशमेंट नहीं दी जा रही है, उससे सिर्फ अपनी निगरानी में रखा जा रहा है ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह के अपराध ना हो। द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज नॉट टू पनिश ए कन्विक्ट बट टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अगेंस्ट स्टेट, societies and any individuals. Under this act a person can be detained not more than 3 months. लेकिन इसके अंदर भी किसी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा तक डिटेन या निगरानी में नहीं रखा जा सकता है। The detention or order can be cancelled based on the opinion of the judge of Supreme Court or member of the advisory boards. डिटेंशन के ऑर्डर बिफोर 3 मंथ्स अगर कैंसिल करवाने हो तो वह सुप्रीम कोर्ट के जज की ओपिनियंस के आधार पे कैंसिल करवाए जा सकते हैं। द स्टेट कैन डिसाइड द टर्म्स ऑफ डिटेंशंस, और इसके लिए स्टेट ही जो टर्म्स होती है, कंडीशंस होती है, उनको डिटेन करता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थर्ड जो बाकी के हमारे शेष जो राइट्स हैं, रिमेनिंग राइट्स हैं, उनके बारे में हम अगले चैप्टर में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।